Good morning, Tanishka. Good morning, ma'am. Tanishka, ready for the class test? Yes, ma'am. Okay. Only you are there. No one is else. It's there about 10. Beta, any problem you are facing while doing accountancy, Tanishka? No, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, Utsav. Good morning, Prisha. Good morning, ma'am. Prisha, ready for class test? Yes, ma'am. Okay. Utsav, am I audible to you? Good morning, Utsav. Good morning, ma'am. Any doubt बेटा? आप तीन we four are there only. Okay. आप तीनों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी कुछ पूछना है? I have prepared some multiple choice questions. Okay. One word are also there, but today we are going to do only multiple choice. In case some questions will be left, then we are going to do it tomorrow. Fine. Ma'am, but how we are going to answer it? Through chat option. Fine. Like there are four Okay. options for the answer A, B, C, D through chat. You have to do that. Good morning, Pav. Parv, good morning. Krish, good morning. Good morning, ma'am. Let's ready for the class test. Be ready for the class test, everyone. Ready for the same. Good morning, ma'am. Ma'am, you are muted.
Yes, everyone, click at the option start video so that we can start with the test, beta. Yes, everyone, click at the option start video and be ready for the test. Yes, Utsav, Simar, I will tell you some rules how to do that. Yes, there are multiple choice questions. I will ask the question and you have to reply through chat. Fine. I will display the answer only for about, we can say 30 seconds. Within 30 seconds, you have to give the answer. Otherwise, I will remove, I will just bring next question. I will just show the next question. Fine. Try to give your best option. Fine. So can we start now? Connection is fine with everyone? Yes, Simar, click at the option, beta, start video. Simar, Utsav. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, you have disabled chat option. बेटा दैट इज मीन्स यू कैन चैट टू मी. सी, मैंने डिसेबल इसलिए किया है कि आप एक दूसरे को चैट ना कर पाओ. तनिष्का, आप मुझे कोई मैसेज भेज के देखो, गुड मॉर्निंग, देखो होता है नहीं होता, एक बार करो बेटा. मैम आपके उसमें मतलब ऑप्शन आ ही नहीं रहा होस्ट करके. आ ही नहीं रहा. एक्चुअली मैंने क्या बंद किया है कि आप एक दूसरे को ना कर पाओ. तो आप मुझे मैसेज नहीं कर सकते क्या? नहीं आ रहा. नहीं आ रहा, रुको मैं चेक कर दूं. सर आप मेरे में एंटर होके देखिए, वो कह रहे आपने चैट ऑप्शन डिसेबल कर दी. Now it's fine. Yes, sir. चलिए, let's start now. Is it visible? Yes, done. Tanishka has given the answer. Prisha has given an answer. Sushant, Krish, Paru. Who is left? Utsav. Yes. So I think I will tell the right answer. Tanishka is right. Just also note your mark somewhere. 1 marks for Tanishka, 1 for Prisha, 1 for Sushant, 1 for Krish, 1 for Manpreet. And 2 students have replied the wrong answer. The answer is monetary nature, not cash nature. Fine. 2 स्टूडेंट है जिन्होंने गलत रिप्लाई किया है. द आंसर इज मॉनेटरी नेचर एंड नॉट कैश नेचर. फाइन. एनी क्वेरी?
कुछ पूछना है जिनका गलत है उन्होंने? सिमर ने आंसर नहीं दिया है. One hasn't given the answer. सिमर आपने आंसर नहीं दिया है. Yes, Parv. Yes, you want to ask something. मैम मॉनेटरी नेचर कैसे होता है वो? बेटा अकाउंटिंग किसको रिकॉर्ड करती है? सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करती है जिसको हम रुपीज टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं. पर मॉनेटरी नेचर जिसको रुपीज में, फाइन, मनी में. हमने पढ़ा था ना कि हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं दैट कैन बी कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी नेचर. फाइन. चलिए, नाउ स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन. Yes. Only 4 are given. Krish has given the answer. Prisha has given. Pav has given. Tanishka has given. Utsav has given. Who is left now? Shushant. Shushant आंसर बताइए कुछ भी जो आपको ठीक लगता है. Any option, Shushant? You want to see the question again, Shushant? I can show you. Yes, ma'am. Shushant, any option? कोई बात नहीं बेटा, गलत भी होगा, कुछ तो आंसर दीजिए. ठीक है, आपको क्या लगता है? जस्ट गिव वन ऑप्शन. दीदी, हाँ जी. Tanishka has given answer, Utsav has given, Shushant has given, Manpreet has given. Now I will just tell the right answer. Yes, listen how many, and note your marks also, है ना? 1 marks for each. Krish, 1 marks. Krish has given the right answer, 1 marks. Prisha has given the right answer, 1 marks. Shushant has given the right answer, 1 marks. Manpreet has given the right answer, 1 marks. Others are wrong. The right answer is true and fair view. Let me show you. Yes, the main purpose of accounting is to give a true and fair view. बच्चे, हमारा मेन पर्पस अकाउंटिंग का क्या है? बिल्कुल सच बताना है, गलत थोड़ा ना बताएंगे हम. अकाउंटिंग का क्या काम है? इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना. तो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर. अनफेयर तो गलत हो जाएगा. इनएडुकेट मतलब आधी अधूरी. बायस्ड मतलब क्या होता है? किसी एक का साथ देना, दूसरे का ना देना. फाइन. तो इसका प्रॉपर आंसर क्या है? जो हमारा मेन पर्पस अकाउंटिंग का क्या है कि हमने जो भी व्यू देना है, अकाउंटिंग का व्यू देना है, वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ट्रू एंड फेयर. फाइन. किसी को कोई डाउट? मार्क्स ऐड करते जाइए. एट द लास्ट यू विल सी हु गॉट द बेस्ट स्कोर. फाइन. चलिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस.
इसको बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल जस्ट ध्यान से सोचिए क्या आंसर हो सकता है, इस लाइन का मीनिंग समझिए. फोकस, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. Yes, one has given the answer. Good. What about others? Be very quick, but focus. Main thing is focus on the question. Yes. Now total 5 have given the answer. Yes, now total 6 have given the answer. Good. How many are left now? 1? We are total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are there. Yes. Only 1 is left. Yes. Total 7 have given the answer. Very good. Now let's see. Yes. Manpreet, right answer. Shushant, right answer. Krish, right answer. Tanishka, right answer. Parv, right answer. Prisha, right answer. Manpreet, right answer. Shushant, right answer. Krish, right answer. Yes. Only 1 is having the wrong answer. See the question once again. Accounting is Ma'am, your voice is not coming. हाँ जी बेटा, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रिप्लेसिंग द मेमोरी. मेमोरी इज द राइट आंसर. इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग है हमें हेल्प करती है हर चीज को रिकॉर्ड करने में, ताकि हमें हर चीज को याद ना रखना पड़े. ठीक है, ये रिप्लेस कर रही है मेमोरी. वी नॉट नीड टू लर्न सो मेनी ऑफ द ट्रांजेक्शंस, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. चलिए, रेडी विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं नहीं है. Excuse me, Yes, ma'am. done. Excuse me, ma'am. Manpreet has given answer. Krish has given. What about others? Very quick. Excuse me, ma'am. Yes. मैम आपके उसमें पर्सनली मैसेज जा ही नहीं रहा. बेटा मेरे पास तो सबके मैसेजेस आ रहे हैं. किसका, कौन, किसके थ्रू नहीं आ रहा? वो प्राइवेटली नहीं जा रहा, सबको एवरीवन में जा रहा है. नहीं, मनप्रीत ने तो लिखा है टू मी प्राइवेटली. मेरे पास आ रहे हैं, आ रहा है टू मी. ओके, एवरीवन में जा रहा है. ओके, सो एवरीवन केम टू नो द आंसर्स. देखिए, मुझे मनप्रीत ने भी प्राइवेटली डाला है, पर्व ने भी प्राइवेटली डाला है.
नहीं, हमारा मैम नहीं वो आ रहा। प्राइवेटली में आप दिखा रहा कि यू आर नॉट द होस्ट और यू आर नॉट एट द मीटिंग। मैनेज। प्रीशा ने भी प्राइवेटली किया बच्चे। उत्सव प्रीशा अब आ गया आपका? प्रीशा का तो ठीक हो गया। तनिष्का आप भी ट्राई करो, क्योंकि मेरी नहीं हो मेरे रहा। तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी डाल रहे हैं बेटा। देखो मुझे 4 ने मैम प्राइवेटली मीटिंग डाले हैं, में नहीं आ मनप्रीत रहा। ने, पर्व ने, प्रीशा ने, कृष्ण ने। प्राइवेटली नहीं जा रहा मैम मैम। मैम सबने एवरीवन डाला, हाँ एवरीवन डाला। इसका सबका आंसर ठीक है, ड्राइंग्स है। बट मैम हाँ मैम प्राइवेटली आंसर नहीं तो जा रहा, drawing। एवरीवन टू जा रहा है। ओके, तो सबको पता ही चल रहा है फिर तो बेटा। बच्चे मनप्रीत आपने हाँ ठीक है। क्रिश आपने एवरीवन को नहीं डालना है, सिर्फ मुझे डालना है, ठीक है। हाँ तनिष्का आ गया। अब आ गया। प्राइवेटली डालेंगे बेटे, इसका आंसर है ड्राइंग्स, ठीक है। अब प्लीज प्राइवेटली डालेंगे। वन मोर थिंग, मैं आपको सिर्फ रीडिंग के लिए टाइम दूंगी, ओनली 10 सेकेंड्स, जल्दी से रीड करेंगे। फाइन। नहीं बेटा, yes, very quick. Tanishka has given, Prisha, Krish, others very quick. Very good. Sushant, other one. सुशांत अब एवरीवन को क्यों लिख रहे हो बेटा? मैम प्राइवेट नहीं हो रहा है। यस उत्सव, यू आर लेफ्ट बेटा। Which of the following does not represent a business transaction? इसमें से कौन सी business transaction नहीं है? Yes. Yes, majority have you given the answer right, only one is wrong. The answer is efficiency of management. Fine. एक बार देखिए फिर से. Which of the following does not represent a business transaction? Goods are sold on credit. Business transaction का मतलब होता है लेन देन, हम कुछ लेते हैं तो देते हैं. देखो goods and sold on credit, ये भी उधार पे लेना है, सामान बेचना है. कैपिटल नया आया है, ये भी ट्रांजैक्शन है. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि हम एफिशिएंसी मैनेजमेंट की कैलकुलेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी. फाइन. चलिए, रेडी विद द नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. The objective of financial accounting is to ascertain Cash for a particular period. Debt only, profit and loss, accounts, assets only. इसमें आपको देखना है कि कौन सी ऑप्शन पर्टिकुलरली फिट करती है उस सिचुएशन को. The objective of financial accounting is to ascertain dash for a particular period. Debt only, profit and loss, accounts, asset only.
Can I stop it? Only one has given the answer. Very quick. 2. Very quick. 3. Yes, very quick. Only 3 have given the answer. I'm going to stop. 4. 5. Yes, good. Jaldi se kijiye. Only 4 has given yes. Yes, Shushant has also given answer. Good. 1, 2. Yes. Only one of you has given the right answer. Can you guess who is that? Only one has given the right answer. Tanishka. That is profit and loss. Let's see. The objective of financial accounting is to ascertain profit loss for a particular period. Particular period मतलब होता है we can represent it for a 1 year, 1 साल का. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करता है. दूसरा क्या बताया था मैंने? फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें कि एसेट्स भी होंगी, लायबिलिटीज भी होंगी. तो पहले तो डी ऑप्शन तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां सिर्फ एसेट्स लिखा है. रॉन्ग हो गया. इसमें आपको कंफ्यूजन ना बेटा सिर्फ 2 में होनी चाहिए थी, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट्स में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने साफ लिख दिया एसेट्स ओनली. अगर वो लिखता एसेट्स एंड लायबिलिटी तब होता है कि तब दोनों ऑप्शन ठीक होती. तो एसेट्स ओनली तो गलत है. अकाउंट्स का क्या है सर्टन करना है. तो राइट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस. राइट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस. So next question. Yes, 2 has given the answer. 3 has given answer. 4 has given answer. Yes, be very quick. 5 has given answer. 6 has given answer. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanishka has given, Krish has given, Prisha has given, Perv has given, Manpreet has given, Shushant has given. Simar is silent today. Simar, click at the option start video. Everyone, 4 of you click at the option start video. Simar, you also. Everyone has given the right answer. Good. The answer is creditors. Yes, good. Now next one. This question is easy. I think everyone has given the answer. Simar, not able to solve any question, beta? Good morning. My net is not working. That's why बार-बार video बंद हो रहा है और फिर बेटा on हो try रहा है. करके देखना. Actually, we are playing one quiz ना. तो इस Okay. multiple choice questions करें. Try your best to solve it. Okay? So ma'am, where we have to give the answer? बेटा चैट के थ्रू प्राइवेटली मुझे Okay. सेंड करोगे आंसर चैट के थ्रू. Okay ma'am. जो भी आएगा आपको, जरूरी नहीं है सबका सब ठीक नहीं हो रहे हैं, पर इससे थोड़ा सा आपको आइडिया तो होगा. ठीक है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay ma'am. The main purpose of balance sheet is to show dash. Yes, one has given the answer. Good. Yes, second also has given the answer. Yes, 3 students have given answer. Good. Yes, next one. Be very quick. Yes, 4 has given the answers. Good. 5 has given.
6 has given, very quick. Yes, only one is left now. 7. Okay. Yes. Yes. Majority of you have given the answer. Just listen the name of the students who have given the right answer. Krish has given right answer. Parv has given right answer. Shushant has given right answer. Utsav has given right answer. Manpreet has given right answer. Prisha has given right answer. The right answer is financial position, not assets and capital. Fine. Assets and capitals कैसे गलत लिख दिया बेटा, ध्यान से सुनो. अगर यहाँ एसेट्स एंड लाइबिलिटी होता तब हम सोच सकते थे ये राइट आंसर है. राइट आंसर नहीं है. जो बैलेंस शीट है वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है. फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 टर्म्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी कैपिटल जो है वो भी लाइबिलिटी है, लेकिन लाइबिलिटीज में बहुत कुछ आता है. कैपिटल तो एक लाइबिलिटी है. क्लियर है? तो यहाँ पे अगर होता एसेट्स एंड लाइबिलिटी तब हम सोच सकते थे दिस इज राइट आंसर. बट यहाँ पे है एसेट्स एंड कैपिटल, तो कैपिटल तो सिर्फ एक लाइबिलिटी है, और भी बहुत सारी लाइबिलिटीज है. सो राइट आंसर इज ए. 7 8 है. नो, इंक्लूडिंग मी 9. Yes, next question. Which one is not the step of accounting? Yes, one has given the answer. Good. Interpretation, recording, window dressing, classifying. It's not a step of accounting. One has given the right answer. Sorry, one has given the answer. Sorry. Now 2 have given, 3 have given, 4 have given. Yes, be very quick. Yes, 4 students have given. Now 5 students have given. Quick. 6 have given. Good. Yes, be very quick. 7 have given. Okay, let's see. Yeah, majority, all have given the right answer. Good. Window dressing, all have given the right answer. Yes. Window dressing का meaning पता है आपको क्या होता है? पता नहीं मैम, तुक्का मार दिया. तुक्का मार दिया. अच्छा, और कोई बताओ विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है? मुझे समझ गई, आपको लगा होगा कि ये वर्ड तो कभी सुना नहीं. हाँ, तनिष्का बताइए. विंडो ड्रेसिंग गलत इंफॉर्मेशन को शो कर. नहीं सुना बेटा, फिर से बताओ. गलत इंफॉर्मेशन को शो करना अकाउंटिंग. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होते है कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के बोलनी, इसे विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं. अच्छा, एक चीज और मैंने आपको इसमें क्लियर करनी है. यस, जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा, Which one was not a step of accounting? इसमें आपको पता है रिकॉर्डिंग भी, आपको तो पता ही है रिकॉर्डिंग तो है ही स्टेप. क्लासिफाइंग मतलब उनको बांटना. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसमें से कंक्लूजन निकालना, है ना, और फिर कम्युनिकेट करना, वो होता है इंटरप्रिटेशन. तो ऑड वन आउट क्या बना? विंडो ड्रेसिंग. ठीक है. विंडो ड्रेसिंग पता है क्या बेटा? इसकी लिमिटेशन है. आपको मैंने एक बार कहा था राइट डाउन द लिमिटेशंस. आप में से स्टूडेंट्स ने लिमिटेशंस लिखी हैं. आपको मैंने एक बार होमवर्क दिया था कि यू हैव टू राइट द 3 to 4 लिमिटेशंस, है ना. एक बार जरा यस पे क्लिक करके ऑप्शन बताओ. वो तो मैंने बाय चांस इसमें कोई क्वेश्चन नहीं डाला है लिमिटेशंस का, बट लिमिटेशंस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास नीचे ऑप्शन में आ रहा है ना यस नो, ये यस एंड नो. जिसने लिमिटेशंस लिखी है प्लीज यस पे ऑप्शन पे लगाइए, नहीं तो क्रॉस कीजिए. सुशांत ने लिख ली, कृष ने लिख ली है, मनप्रीत शी हैज आल्सो रिटन, पर्व ने नहीं लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रीशा ने लिख ली है, सिमर हैज आल्सो रिटन, तनिष्का हैज आल्सो रिटन. हाँ जी बेटे, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लिमिटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसी में लिमिटेशन है एक विंडो ड्रेसिंग. तो लिमिटेशंस वाला क्वेश्चन ना किसी तरीके आता है. नो डाउट आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, पर प्लीज लिमिटेशंस लिखिए. मीन्स आपके जब एग्जाम होंगे ना, फाइनल ब्लॉक, किसी ना किसी में आप सोचो वो आएगा ही आएगा क्वेश्चन. ठीक है.
चलिए, now we are having only 2-3 more. Yes, very quick. One has given answer. Okay, good. Yes, 2 students have given the answer. Good. Now 3 have given. Yes, what about others? 3 have given the answer. Yes, 4, 5. Good. 6 have given. Only 1 is left now. 7. Okay, let's see. Chaliye, let's discuss who has given the right answer. Yes. Utsav has given the right answer. अच्छा, let me see the option कौन सी थी ये? Okay, okay, fine. C है option. Simar has given the right answer. Utsav, Simar. Shushant has given right answer. बाकियों की ऑप्शंस क्यों नहीं दिख रही हैं मुझे? आप लोगों ने नहीं भेजा, आपकी ऑप्शन नहीं आ रही है. सुशांत की यहाँ मुझे, उत्सव की, मनप्रीत की, सिमर की, सुशांत की, बाकी किसकी क्यों नहीं इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है? बाकियों की नहीं आ रही है इंफॉर्मेशन मेरे पास. मैम वी हैव सेंट. तनिष्का, आपकी भी नहीं आई है मेरे पास. देखती हूँ बेटा, एक बार देखिए, मैं बताती हूँ आपको किस किस की आई है. ये तो हाँ, मेरे पास है तनिष्का का आंसर. नहीं, तनिष्का नहीं 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 है, ये तो पुराना आंसर है. तनिष्का का है. यस तनिष्का, यू हैव सेंड ए वेरी वेरी बिगिनिंग. ठीक है, तनिष्का ने भेज दिया, प्रीशा ने भेज दिया, कृष ने भेज दिया, उत्सव ने भेज दिया, मनप्रीत ने भेज दिया. ठीक है, द राइट आंसर इज वाउचर. आप देखिए, नंबर लगाइए जिसका राइट आंसर है. राइट आंसर इज वाउचर, क्योंकि कल हमने पढ़ा था ना बेटा, वाउचर ही तो है. ये देखो, जर्नल लेजर के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं. आप ये भी तो सोचो, एक ये भी तो पॉइंट है. एक आपको बैलेंस शीट के बारे में पता है, एक वाउचर के बारे में. उसने कहा है एविडेंस क्या है. एविडेंस मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रूफ क्या है. हमारे पास प्रूफ क्या है? जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, व्हेन आई परचेज्ड अ मशीनरी. अगर आप मशीनरी परचेज करते हैं और अगर आप उसको कैश देते हैं तो क्या मांगोगे आप? कैश मेमो. और अगर उधार पे देते हैं तो क्या मांगोगे? इनवॉइस. ये कैश मेमो और इनवॉइस क्या है? वाउचर्स ही तो है. एनसीईआरटी में है ना वाउचर की डेफिनेशन. तो वाउचर क्या है? ये एक एविडेंस है, लीगल एविडेंस है, जिसके अगेंस्ट हम केस भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, प्रोडक्ट ठीक नहीं निकलता है, तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं. अगर हमारे पास कैश मेमो होगा, इनवॉइस होगा, तभी तो करेंगे. तो हमारा एविडेंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस का है वाउचर. वाउचर मतलब रसीद, जो हमें दुकान से मिलती है जब भी हम सामान कैश पे, जहाँ हम सामान खरीदेंगे क्रेडिट पे. Fine. So these are the total number of the questions. Now just tell me your score, everyone. लिख के बताओ अपना स्कोर, किसका कितना स्कोर है. आपने नोट किया है ना? I told you to note your score. देखे किसका हाईएस्ट स्कोर है. Excuse me, ma'am. पर yes बेटा तनिष्का. Ma'am, total questions के I think total question were 10. Let's see once more. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक और है 10. बेटे 10 क्वेश्चंस है टोटल. एक बार आपको रिव्यू भी कर देती हूँ 10 क्वेश्चंस का.
एक बार रिव्यू कर लेते हैं और काउंट भी कर लेंगे 10 क्वेश्चंस टोटल. फाइन. Question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Total we are having 10 questions. हाँ जी, आप मुझे बताइए. Yes. Okay. Average student got 8, 9. Prisha is good. Prisha got the highest, I think 9. Fine. Prisha got the highest 9. Others got the 8, 8, 8, 8. So today you have to just inform your parents also कि हमारा टेस्ट हुआ और हमारा इतना स्कोर आया, so that they also came to know कि you are doing something. Fine. So it's good. You all got the good score. Better. At least everyone is near about 60%. No one is less than 60%. Fine. But just try to read the NCERT thoroughly, because everything is from NCERT, but we have to read it very nicely. मतलब कि अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ो ताकि you able to know the in-depth meaning of the things. चलिए ठीक है. One more thing. कल try करेंगे. We will do some one-word questions, one-word answers. आज तो मल्टीपल चॉइस थी, कल भी फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है. रिवाइज दिस चैप्टर अगेन. फिर से पूरा चैप्टर रीड करना है. ये नहीं सोचना कि अरे कल तो हमने किया था. नो, आज तो मल्टीपल चॉइस थे, कल वन वर्ड होंगे जब फिल इन द ब्लैंक्स होंगे. फाइन. बी रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो ऑल्सो. फाइन. चलिए, एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क बेटा? Simar, she has left? No, she is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, chaliye. Okay, I think the session is over. It's 42. You can join the next class now. Okay? Thank you, ma'am. Okay, beta. Okay, bye. Excuse me, ma'am. Yes, beta. मैम आपने जो ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग था